Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, let's take some more questions from reported speech topic. सब पुराने सेशंस जितने भी हमने प्रीवियस सेशंस किए आई होप सारे आपको क्लियर होंगे. जितने भी पॉइंट्स आपको नए लगे आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और इस सेशन में मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन देखें जैसे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर अपियर होता है और ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम लेंगे यहाँ पे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन. Okay, the first one. He says I am ill. He says that he is ill. Reporting verb simple present में है तो आपका जो tense है वो change नहीं होगा sentence का. So he said that he is ill. ठीक है. Mohan said to me I am doing my work. अभी ये जो reporting verb है वो past में हो गई. So he was doing his work. He was doing his work. I said to him I went there on Tuesday. I told him that I had gone there on Tuesday. I told him that I had gone there on Tuesday. ठीक है, मैं सारा लिख नहीं रही हूँ. काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं तो अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आई गेस. द टीचर सेड टू अस द अर्थ इज राउंड. यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं होगा. सो द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ इज राउंड. द टीचर told us that the earth is round. The boy said I saw him while I was running. The boy said that he had seen him. I saw him, simple past, he had seen him while he was और while he was running he had been running. कुछ भी हम लिख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस को कन्वर्ट करने के लिए. पास्ट कंटिन्यूस भी रख सकते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. She said you need not wait. So she said that I need not wait. ठीक है, हम ऐसा समझ रहे कि इसने मुझे कहा है. So she said that I need not wait. I said to him your brother has passed. Okay, so I told him that his brother had passed. His brother had passed. ओके, आई सेट टू हिम है तो हिम आई टोल्ड हिम कर दिया तो यहाँ पर इस हिम के लिए ही हम वापस हिज ब्रदर हैड पास्ट यूज करें. आई सेट टू हिम वेयर डू यू लिव. सो आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड. ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. वेयर डू यू लिव सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वेयर ही लिव्ड. ही सेड टू मी वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास. तो अब हम इसको एडवाइस मान सकते हैं. सो ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड. सजेशन है, एडवाइस है तो इन्फिनेटिव आता है. सो ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ आई वांटेड. ठीक है, वांट है तो वांटेड में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ आई वांटेड टू पास. उसने मुझे सजेशन दिया इसलिए यहाँ पर यू की जगह आई आ रहा है. सो ही advised me to work hard if I wanted to pass. He said to me, do not go there. Okay, he told me not to go there. Okay, he told me not to go there. He said, what a pitiful scene. Okay, so he exclaimed that it was a pitiful scene. थोड़ा change है, exclamatory sentence है, so exclamation हमने लगा दिया exclaimed. He exclaimed that it was a pitiful scene. ठीक है, it was a pitiful scene. She said where is the hospital. She asked where the hospital was. ये different है. ये सिंपल ही है. Where the hospital was. The big man said quite right. Okay, so the big man said that it was quite right. ये वापस सेम पैटर्न है. So the big man said it was quite right. ठीक है. We will wait for you if you are late, they said. So they told me that they would, will की जगह would, they would wait for me if I was late. Okay, they told me
they would wait for me if I was late. ठीक है. Ram asked Mohan what is the time. So Ram asked Mohan what the time was. बहुत सिंपल है. What the time was. Question mark हटा दीजिए. The saint said to her, may God help you. Okay. So the saint wish that the God might help her. That द नहीं लगेगा. आई एम सॉरी. दैट गॉड माई मे का माइट हो जाएगा. दैट गॉड माइट हेल्प हर. ठीक है. द सेंट विश्ड दैट गॉड माइट हेल्प हर. विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी सेड हर्ष. सो हर्ष विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी. बहुत सिंपल है. हर्ष विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी. The boy said, hooray, we have won the match. So the boy exclaimed with joy. The boy exclaimed with joy that we have won. Present perfect, past perfect में convert कर देंगे. They had won the match. Okay. Sarla said, alas, I have failed. Okay, so Sarla exclaimed with, यहाँ पर जैसे joy था, यहाँ पर exclaimed with sorrow कह सकते हैं. और Sarla exclaimed with sorrow that she had failed. Okay, that I have failed. Present perfect. She had failed. Past perfect. My mother said to me, don't jump on my bed. So my mother told me or asked me not to jump on her bed. Not to jump on her bed. ठीक है. तो काफी सारे एक्सरसाइज हो गई काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. कुछ एक में थोड़ा चेंज भी है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए उनको. थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अभी. Put the verb following into indirect speech using ask, advise, invite, offer, remind, tell, warn. Okay. He said to me, would you like to have lunch with me on Sunday? Okay. अभी इस केस में क्या हो रहा है कि ये he said to me, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं संडे को उसके साथ में लंच लेना पसंद करूंगा. प्रिसाइसली हो क्या रहा है कि वो उसको संडे लंच के लिए इनवाइट कर रहे हैं. राइट. सो ही हम उसको इनवाइट के सेंस में ले सकते. तो ही इनवाइटेड मी टू हैव लंच विथ हिम. राइट. ही इनवाइटेड मी टू हैव लंच विथ हिम ऑन संडे. ओके. और अगर आपको डे बताना जरूरी नहीं है तो ना बताइए. So he invited me to have lunch with him. Would you like a drink? Said one of the guests. अभी यहाँ पे गेस्ट है जो वो क्या कर रहा है, कोई ड्रिंक है वो ऑफर कर रहा है. सो आप यहाँ पर ऑफर यूज कर सकते हैं. सो वन ऑफ द गेस्ट ऑफर्ड. अब वो ऑफर किसको कर रहा है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो या तो आप मी यूज कर लीजिए या फिर हिम यूज कर लीजिए, हर यूज कर लीजिए, जो भी है. राइट. सो वन ऑफ द गेस्ट offered me a drink. Offered me a drink. या offered him a drink. ठीक है, जो भी. Okay, would you mind not smoking between courses? Said their hostess. Okay, so the hostess asked if they would mind not smoking between courses. If they would mind not smoking between courses. If they would mind not smoking. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, the hostess asked them not to smoke between the courses. Not to smoke between the courses. Take these letters to the post, will you? And shut the door as you go out, said the boss. Okay. So the boss told her or him, जो भी है यहाँ पे, the boss told him to take
those letters to the post and to shut the door as she went out. Okay, I just write it. The boss told her to post these letters की जगह those letters हो जाएगा, those letters to the post and to shut the door as she went out. Okay, you go out की जगह as she went out. सिंपल प्रेजेंट जो होता है सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. विल यू हेल्प मी प्लीज, शी सेड आई कांट रीच द टॉप शेल्फ. सो शी आस्क्ड मी, और किसी और के लिए अगर हो तो शी आस्क्ड हिम और शी आस्क्ड हर. शी आस्क्ड मी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर एज she could not reach the top shelf. can't की जगह could हो जाएगा. as she could not reach the top shelf. okay, थोड़े लेंदी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी भी है. This is a horrible room. Why don't you ask for something better? Okay, better. So precisely, he told that it was, or he told me, I'm sorry, he told me that was a horrible room and advised me to get something better or to ask for something better. ठीक है. If I were you, I would try to get a room on the top floor. अब यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गई है. कंडीशन भी किस तरह की कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं टॉप फ्लोर पर रूम मांगती. इसका मतलब क्या मांगता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रिसाइजली ये इसको सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें टॉप फ्लोर पर रूम मांगना चाहिए, राइट. सो ही सजेस्टेड या फिर ही एडवाइज्ड मी या फिर हर जो भी है. सो ही एडवाइज्ड मी टू गेट अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर. सो ही एडवाइज्ड मी टू गेट अ room on the top floor. Okay, I'll wait for you if you like, he said. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज इसको लिफ्ट देना है तो ये बोल रहा है कि भाई मैं आपका वेट कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वेट ऑफर कर रहा है. सो हम ऐसा कह सकते हैं शी सेड शी ऑफर्ड मी to wait. Okay, she offered to I'm sorry, ऐसा लिख सकते, she offered to wait for me. That would be better. She offered to wait for me. Okay, इसके सिवाय भी हम बोल सकते she said that she would wait for me. she will की जगह she would wait for me if I liked, right. she would wait for me if I liked. ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है. she offered to wait for me और she would wait for me if I liked. Next is remember to switch off when you have finished. he said you have finished present perfect है, past perfect हमको यूज करना पड़ेगा. so he reminded, remember कह रहा है तो हम remind यूज कर सकते हैं. so he reminded me to switch off when I'd finished. He reminded me to switch off when I had finished. Okay. You might check these figures for me. Okay, so हम ऐसा कह सकते हैं he asked और he told. So he told he told me to check these figures or those figures for him. Okay, he told me to check those figures और the figures हम कह सकते हैं क्योंकि इन particular figures की बात कर रही है. in the figures for him. ठीक है.
you'd better apologize for being late, said my mother. Okay, so my mother advised me to apologize, right? My mother advised me to apologize for being late. Could you check the oil please? I asked the mechanic. अब यहाँ पर हम if भी यूज कर सकते हैं, हम मैकेनिक को कह भी सकते हैं, ठीक है. सो दोनों तरह से बात करते हैं. I asked the mechanic to check the oil. I requested the mechanic to check the oil. और I asked the mechanic if he could check the oil, right? So वैसा भी बोल सकते हो आप. I wish you'd sit still, said the artist. How do you expect me to paint when you keep jerking your head? अब यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्टिल बैठो, मतलब हिलो डुलो नहीं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अगर मैं तुम्हारा पेंटिंग अच्छे से बना दूंगा अगर तुम अपना सर हिलाते ही रहोगे तो, ठीक है. तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आर्टिस्ट है उसने उसको एडवाइस किया कि वो हिले ना, या फिर उसने उसको कहा कि वो हिले ना, या फिर आर्टिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ना हिले, ठीक है. तो हम कोशिश करते हैं इसके लिए. So the artist told me to sit still ठीक है. अब ये यहां तक हो गया टू सिट स्टिल. एंड अब क्या हो रहा है कि वो ऐसा कह रहा है हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू पेंट. अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ही आस्क्ड, तो कंटिन्यूएशन में चला सकते हैं. एंड आस्क्ड हाउ डू यू एक्सपेक्ट, सो हाउ आई एक्सपेक्टेड टू पेंट व्हेन आई केप्ट जर्किंग माई हेड, राइट. व्हेन आई केप्ट जर्किंग माई हेड, अगर मैं अपना सर बार बार हिलाता रहूंगा तो मैं ऐसा कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो एक अच्छी सी पेंटिंग मेरी बना देगा, ठीक है. तो थोड़ा लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट में धीरे धीरे करिए. आई जस्ट डू इट वंस अगेन. आई विश यूड स्टिल सिट स्टिल, सेड द आर्टिस्ट. सो द आर्टिस्ट टोल्ड मी टू सिट स्टिल. ये इतना पोर्शन हो गया. उसने मुझे सीधे बैठने को कहा और कहा हाउ, जो हाउ वर्ड है जो हमने पहले बात किया था क्वेश्चन वर्ड में है, तो क्वेश्चन आपको हाउ एज इट इज यूज करना ही है, ठीक है. और डू यू एक्सपेक्ट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाएगा. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हाउ आई एक्सपेक्टेड टू पेंट व्हेन आई kept jerking my head. When you keep again simple present है, इसको simple past में convert कर दीजिए. So when I kept jerking my head, ठीक है. बहुत important है, थोड़ा lengthy है लेकिन difficult नहीं है. Why don't you go by train? It is much less tiring than driving. Okay, I said. तो अभी यहाँ पर I said मतलब precisely हो क्या रहा है, advice दे रहे हैं, right? So advice कैसे भी कह सकते हैं. I advised him to go by train, so that because it was much less tiring than driving. So I advised him to go by train as it was much less tiring than driving. ठीक है. it is है तो it was में convert हो जाएगा. So I advised him to go by train as it was much less tiring than driving. Would you like to wait here, said the receptionist, showing me the waiting room. Okay, the receptionist asked me to wait there. Simple, right? The receptionist asked me to wait there. Here का there हो जाएगा. Okay, so that's pretty simple. You must see this exhibition, said all my friends. So my friends suggested me to see that exhibition. Okay, or I can say advised me to see that exhibition. My friends advised me, suggested me
or strongly suggested me, strongly advised me to see that exhibition. Okay, I should plant daffodils if I were you, I said to them. So यहाँ पर भी क्या, मैं तुम्हारी जगह होती तो ये करती, मतलब प्रिसाइजली आप एडवाइस ही दे रहे हो ना. सो आई एडवाइज्ड देम टू प्लांट डेफोडिल्स, राइट. आई एडवाइज्ड देम टू प्लांट डेफोडिल्स. If you would just sign the back of the check, said the bank clerk. So अभी क्या है, simple. He asked me to sign the back of the check. To sign the back of the check. कुल मिलाकर के उसने मुझे एडवाइस किया है या कहा है. यहाँ पे एडवाइस नहीं, यहाँ पर इनफैक्ट कहा है. So the bank clerk asked me to sign the back of the check. I would be very grateful if you'd forward my letter while I am away, he said. So ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. He asked me to forward his letters while he was away, right? So he asked me to forward his letters while he was away. I am away की जगह he was away. Don't leave your room at night, he said. Our host dogs might mistake you for a burglar. अब यहाँ पर क्या है, he warned me not to leave, right? Don't leave की जगह not to leave my room at night, as their host dog might mistake me for a burglar. Answer this letter for me, will you? He said, and remember to keep a copy. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज कर सकते हो. सो ही रिक्वेस्टेड मी टू आंसर, और ही टोल्ड मी, बेटर ये है कि ही टोल्ड मी टू आंसर द लेटर फॉर हिम. ही told me to answer the letter for him. यहाँ पर for me की जगह for him हो जाएगा, for him. And remember के लिए हम reminded यूज कर सकते हैं, and reminded to keep a copy. And reminded me आप लगा सकते हो, and reminded me to keep a copy. So he told me to answer the letter for him and reminded me to keep a copy. Okay. Would you mind moving your car? He said, it is blocking my gate. So यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, he asked me कह सकते हैं, right? He asked me to move my car as it was. It इसकी जगह it was हो जाएगा. It was blocking his gate. He asked me to move my car as it was blocking his gate. ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कैसे बनेगा. ठीक है, तो जितने भी रूल्स हमने सीखे हैं वो रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, प्लस ये जो कॉमन सेंटेंसेस है यहाँ पर कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट. जैसे वुड यू माइंड मूविंग योर कार है, इसका अगर हम जैसे वुड से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसको, जैसे ये बेसिकली एक क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो आप यहाँ पर इफ भी यूज कर सकते हो, इफ आई माइंड. ठीक है, पर यहाँ पर जो बेटर कन्वर्जन होगा डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में, वो ये होगा कि भाई उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी टू मूव माय कार. अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, उसने जो कहा उसको आप अलग तरीके से किसी और को बता रहे हैं. ठीक है, तो जो इसने कहा और जो आप बोल रहे हो उसने क्या कहा, तो ये जो कन्वर्जन है वो बेटर है, राइट. ही आस्क्ड मी टू मूव माय कार एज इट वाज ब्लॉकिंग हिज गेट. ओके, in a letter, perhaps you'd let me know when your new stocks come in.
कम्स इन। ओके, तो मिसेस जैन ने उनसे कहा कि मुझे प्लीज बताइए या आप मुझे बता दीजिएगा जब आपका नया स्टॉक आता है। सो मिसेस जैन ने मिसेस जैन आस्क्ड देम ऐसा कह सकते हैं आप, और आस्क्ड हर ऐसा कह सकते हैं। सो मिसेस जैन आस्क्ड हर टू, ऐसा भी बता सकते हैं कि टू लेट हर नो, to let her know when their, और when यहाँ पे जैसे हर किया है तो when her new stocks came in, when her new stock came in, her know when her new stock came in। ठीक है, comes in है सिंपल पास्ट, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मिसेस जैन आस्क्ड हर, अगर देम है तो यहाँ पर आपको देम लगाना है, और यहाँ पर भी फिर यहाँ पे देम ही यूज होगा। सो मिसेस जैन आस्क्ड हर टू लेट हर नो व्हेन हर न्यू स्टॉक केम इन। ठीक है, स्टॉक कम्स इन, सो स्टॉक केम इन। Could you sew on this button for me? Tarun asked Anu. Tarun asked Anu to sew on this on the button for him, right? Tarun asked Anu to sew on the button for him. Okay, pretty simple. If you will kindly sit down, the fortune teller will be with you in a moment, the girl said. So लड़की कह रही है कि भाई आप शांति से बैठ जाइए, और जो फॉर्चून टेलर है, जो भी भविष्यवाणी करता है, वो आपके साथ होगा एक मोमेंट में, एक मिनट में, या ऐसा कुछ भी। सो द गर्ल आस्क्ड अस टू सिट डाउन, और लड़की ने मुझे कहा। सो द गर्ल आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड सेड the fortune teller would be with me in a moment. So the girl asked me to sit down and said the fortune teller would be with me in a moment. ओके, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने किए, डेफिनेटली थोड़े लेंदी हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर हमने बिल्कुल एकदम से रूल्स के हिसाब से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं किया है, बट हम अपना अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, अपनी डे टू डे लाइफ में बात करें, तो हम किस तरह से हिंदी में भी इनफैक्ट अगर हम बात करें तो किस तरह से एक सेंटेंस को हम इनडायरेक्टली दूसरे को कन्वे करेंगे, तो वो वाला हमने यहाँ पर जो है सेंस यूज किया है। तो रूल्स के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है, और एक जनरल सेंस के साथ में आप सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। आप सेशन को पॉज करके ये सारे सेंटेंसेस अपने हिसाब से वापस प्रैक्टिस करिए। I'll see you in the next session once again. काफी सारे और भी कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है उस पर आपकी काफी अच्छे से ग्रिप आ जाए। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस मैं इन सेशंस में यूज कर रही हूँ सब काफी अच्छे प्रीमियम बुक्स में से मैं ले रही हूँ, और काफी सारे बुक्स में से ले रही हूँ ताकि काफी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बट बार बार मैं आपसे ये बोलूंगी सेशन को पॉज करके, और ये सारे सेंटेंसेस जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनको आप दोबारा से करिए, उनको बोल करके भी करिए, उनको लिख करके भी करिए, बिकॉज आपको बोलना भी आना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। लिखना आना चाहिए क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और बोलना आना चाहिए ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो अच्छे से कंफर्टेबली आप बात कर सकें। Okay, so I'll see you in the next session once again. Bye bye.